पहला अध्याय उसमें 28वां वचन को पढ़ेंगे। எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு அவரையே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம். ஆமென். हिंदी। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम पर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हम एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थिति करें। तो आइए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में भाई सबेसन है, वो प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, और वचन के साथ साथ बहन लीला और कोमल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका तबीयत ठीक नहीं है करके कल अपना ग्रुप में मैसेज आया था। उनको प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ஜெபிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்துதிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள தேவனே, இன்றைய நாளில் கர்த்தாவே, இந்த ஞாயிறு இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே தேவனை கர்த்தாவே நீர் ஒருமனதாக கர்த்தாவே உங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் ஒன்று கூடி தேவனை உண்மைக்கு ஆராதிக்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் மத்தியிலும் தேவனை கர்த்தாவே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே தேவனை கர்த்தாவே ஒவ்வொரு ஞாயிறு ஆராதனையும் தேவனை கர்த்தாவே நீர் எங்களை மகிமைப்படுத்தி உமது மகிமையினால் எங்களை நிறைத்து கர்த்தாவே நீர் எங்களை சமாதானத்துக்குள்ளாக எங்களை பிரவேசிக்க பண்ணும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே தேவனை கர்த்தாவே சுதிக்கிறோம். வார்த்தைக்காக நாங்கள் உமது பாதத்தில் வருகிறோம். தேவனே, உமது ஞானத்தினால் கர்த்தாவே நாங்கள் நிரப்பும்படியாக கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு போதிக்குமாறு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீர் கர்த்தாவே தாசன் மூலமாக கர்த்தாவே கேட்கக்கூடிய வார்த்தையை நீர் நாமே கர்த்தாவே ஆசீர்வதித்து எங்களுக்கு நானே வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஜீவபன் சொன்ன தேவன் கர்த்தாவே உண்மை நாங்கள் உமது வார்த்தையை நாங்கள் கர்த்தாவே உட்கொள்ள நீர் கிருபை செய்யும். தேவனே கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரும் தேவனை கர்த்தாவே உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது தேவனே நாங்கள் பிரகாசிக்க முடியும். நீர் நான் பிரகாசிக்கிறது போல நீங்கள் பிரகாசிகள் என்று சொன்ன தேவன் கர்த்தாவே உண்மை இடத்திலிருந்து கர்த்தாவே நாங்கள் ஒளியை வாங்கி நாங்கள் பிரகாசிக்கிறோம். தேவனை கர்த்தாவே நீர் ஒளியாக இருக்கிறீர். ஒருவரும் சேரக்கூடிய ஒளியில் வாசம் செய்கிற தேவன் கர்த்தாவே நீர் எங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் இருதயத்தில் நீர் வாசம் செய்கிற தேவனாக இருக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன். இந்த இடத்துல கூட கர்த்தாவே நீர் அசைவாடி கர்த்தாவே எங்களை ஒவ்வொருத்தரும் மத்தியிலும் தேவனே நீர் 7 சபை காலத்தில் கர்த்தாவே நீர் ஒவ்வொரு சபை காலத்தில் உலாவுகிறீர் கர்த்தாவே. 7 நட்சத்திரங்களை கர்த்தாவே ஒரு வலது கரத்தில் ஏந்தி தேவன் ஒவ்வொரு சபை காலத்தில் கர்த்தாவே நீர் வெளிச்சத்தை தருகிறேன். தேவனை கர்த்தாவே சுதிக்கிறோம். ஒரு வார்த்தை உங்களுடைய கர்த்தாவே நீர் வார்த்தையின் மூலமா எங்களோட பேசுமாறு ஜெபிக்கிறேன். எங்கள் உதயத்தின் உள்ளத்தில் கர்த்தாவே என்னென்ன தேவையோட எல்லாம் சந்திக்கப்பட முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு உள்ளத்தில் கர்த்தாவே ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனை கர்த்தாவே என்ன வேண்டுதல் உண்டோ எல்லாத்தையும் நீர் நிறைவேற்றி தர வல்லவராக இருக்கிற கர்த்தாவே நீரே கர்த்தாவே உயிர்த்தெழுந்த தேவனாக இருக்கிற கர்த்தாவே உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை உம்மிடத்தில் உள்ளது கர்த்தாவே. எங்கள் யாவரையும் கர்த்தாவே உயிர்த்தெழுந்த மரித்தால் அவர் பிழைப்பார் என்று சொன்ன தேவன் கர்த்தாவே யோபு தன் சொந்த கண்களால் தேவனை காண்பேன் என்று சொன்னது போல கர்த்தாவே நாங்கள் கர்த்தாவே ஒரு வார்த்தையை உட்கொள்ளும் போது கர்த்தாவே எப்பொழுதும் ஜீவித் மனுஷனாக இருப்போம் கர்த்தாவே. ஜீவனுள்ள தேவன் கர்த்தாவே உங்களிடத்திலிருந்து ஜீவ வார்த்தைகள் பெறப்பட்டு நதியாய் ஓடுகிறது கர்த்தாவே. விசேஷமாக கர்த்தாவே லீலா சச்சங்க ஜெபிக்கிறோம் தேவனை கர்த்தாவே. குடும்பத்தில் தேவனை பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தாவே அந்த படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானத்தை தரும். வீட்டை சுற்றிலும் கர்த்தாவே நீர் ஒளிவு மர கண்டுகளாக அந்த தூதர்களை கொண்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன். அந்த வீட்டில் கர்த்தாவே அவருக்கு எந்த விதமான கஷ்டங்கள் தொல்லைகள் பாடுகள் ஏற்படாதவர் கர்த்தாவே வியாதியின் விடுதலை அவர் உள்ளத்தில் கர்த்தாவே எப்போ சந்தோஷத்தை இருக்க நீரே கர்த்தாவே அந்த வீட்டில் அசைவாடுமாறு ஜெபிக்கிறேன். தேவன் அந்த வீட்டில் கர்த்தாவே எந்த கஷ்டங்களும் எந்த தொல்லைகளும் ஏற்படாத பாதுகாத்தவர்கள் பிள்ளைகள் தேவனே வாரந்தோறும் அந்த ஆலயத்துக்கு வர கர்த்தாவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லா வழிகளையும் திறந்து தருமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல நீங்க அசைவாடும் இந்த நேரத்தில் கூட கர்த்தாவே வார்த்தை மூலமா எங்களோட பேசி கர்த்தாவே வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு பிட்டு தருமாறு அந்த வார்த்தை கர்த்தாவே எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தரும் என்று விசுவாசிக்கிறோம். விசுவாசத்தோட கர்த்தாவே நம்ம தொடுகிறோம். நீர் தான் எங்களை மகிமைப்படுத்தும் கர்த்தாவே. எங்களை பாதுகாத்தோம்னா அணைத்துக் கொள்ளும். ஒவ்வொரு நாளும் தேவை கர்த்தாவே
எங்களுக்கு எல்லா தேவைகளும் நீ தருகிறேன் என்று விசுவாசத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே கர்த்தாவே ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். आमेन आमेन। बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, वो पहला अध्याय 28वां वचन को फिर से पढ़िए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। देख लेना, यहाँ शास्त्र ले कहता है इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। कोलोसियर 1வது அதிகாரத்துல 28வது வார்த்தை। हर एक मनुष्य को हम क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से हम हर एक मनुष्य को क्या करते हैं? सिखाते हैं। मसीह के विषय में हम हर एक को अच्छे से क्या होना चाहिए? ज्ञान होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। हाँ, नीचे कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध करके उपस्थित करें। तमिल वासन எந்த மனுஷனையும் कोई भी मनुष्य होने दो, கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு किसके अंदर वो सिद्धता के अंदर आना चाहिए? मसीह यीशु के अंदर। हम में से कोई भी व्यक्ति नामधारी मसीह नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हम में से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं बनना चाहिए? नामधारी मसीह नहीं बनना चाहिए। एक भी व्यक्ति आएगा वो सच्चा मसीह बनना चाहिए। कौन सा मसीह बनना चाहिए? वो सच्चा मसीह। डोंगी नहीं चाहिए हमको, अविश्वासी नहीं चाहिए। परमेश्वर केवल और केवल विश्वासियों के लिए मारा गया है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, எந்த மனுஷனையும் எதுல அவன் தேரணுமா? கிறிஸ்துவுக்குள்ள தேரணும்। आगे அவரே நாங்கள் அறிவித்து அவர்களையே இல்ல, उन लोगों को नहीं है, उन्हीं को। அப்போ அவரையே நான் ஒருமையா பன்மையா? हालेलुया। उसको ही हम लोग क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं। वो यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूं करके यदि तुम ना विश्वास करोगे तुम तुम्हारे पापों में क्या करोगे? मरोगे। हम लोग करके कभी बात नहीं किया, मैं करके बात करता। मूसा से बात करने के टाइम में मैं हूं सा हूं करके कहने वाला, तुझे भेजा है करके तू जाकर लोगों से कह करके बोला है। बोलो हालेलुया। அவரையே நாங்கள் என்ன செய்யறோமா? அறிவித்து। देख लेना, पौलुस बहुत ही अच्छी रीति से बात करता है। किधर? कोरिन्थियों में बात करने के टाइम में पहला कोरिन्थी का 2 अध्याय 2 वचन को पढ़िए। இயேசு கிறிஸ்துவை हाँ, சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி यीशु मसीह को जो सलीब पर मारा गया उसके अलावा வேறொன்றையும் உங்களுக்குள்ளே அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன்। दूसरा कोई भी चीज को तुम लोग जानने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कर लिया? निश्चय कर लिया। क्यों? क्योंकि शास्त्र ले कहता है उसको जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। किसको जानना अनंत जीवन है? प्रभु यीशु मसीह को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए वो बोलता है, पहला वचन को पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्द या ज्ञान की उत्तमता से मैंने क्या नहीं किया? तुम्हारे पास आया नहीं है। हालेलुया। शब्द या ज्ञान के जरिए मैं बताने के रूप में तुम्हारे पास क्या नहीं किया? मैं नहीं आया। सिंपल रीति से बात किया। सलीब पर मरा हुआ यीशु को तुम क्या कर लो?
जान लो। बोलो हालेलुया। इसलिए कोलोसियन में वो कहने के समय पर कहता है अंधवार्ते मूल में कोलोसियन 1:20 எந்த மனுஷனையும் हाँ கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு मसीह के अंदर बढ़ना चाहिए, हाँ सिद्धता के अंदर आना चाहिए और அவரையே நாங்கள் அறிவித்து उसको ही हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में ही हम बताते हैं, मसीह के बारे में। हाँ எந்த மனுஷனுக்கு புத்தி சொல்லி हर एक मनुष्य को बुद्धिमत्ता की बातों को बताकर எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம்। हर एक मनुष्य को सभी प्रकार के ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं, उपदेश करते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वही अध्याय के अंदर 10वां वचन को पढ़िए। சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய हाँ கனிகளை தந்து एक व्यक्ति अगर मसीह के अंदर आ गया तो उसके अंदर से हर प्रकार का भला का फल वो क्या करना चाहिए, देना चाहिए। बोलो हालेलुया। यदि एक झाड़ लगाया है, एक निश्चित किया हुआ दिन के बाद अगर वो झाड़ फल ना दे तो वो झाड़ से कोई लाभ है क्या? उसको काटना और जलाए जाना है, इसके अलावा दूसरा कोई काम में नहीं आएगा। यहाँ शास्त्र ले कहता है हर एक प्रकार का भला का जो फल है उसे वो देकर தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து किसको जानने का ज्ञान में बढ़ना चाहिए, मसीह को जानने का ज्ञान में वो क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर हम काफी सालों से आ रहे हैं, अगर भलाई का फल हमारे अंदर से नहीं दिखने में आ रहा है तो हमारा आना व्यर्थ है। हालेलुया। हम जब आते हैं प्रभु के घर में तो प्रभु का फल हमारे अंदर से क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। नाम के लिए आने वाले लोग भी आते हैं, कोई मतलब नहीं। नाम के लिए आना कोई मतलब है ही नहीं। एक प्राण अगर आता है वो प्राण फल देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। नई लोग हैं, युगानुग से वचन को सुनते आ रहे हैं, अगर जीवन में कोई बदलावट नहीं है तो फिर क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है ना। यह शास्त्र ले कहता है पहला अध्याय में 10वां वचन में सभी प्रकार के भलाई के फल को देकर परमेश्वर को जानने के उस ज्ञान में बढ़कर परमेश्वर के योग्य चाल चलना जरूरी है। वासिमा கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் नाम எப்படி நடக்கிறோம், हम कैसे चलते हैं, परमेश्वर हमारे चाल चलन से क्या होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। हिंदी में पढ़ना बेटा इस वचन को 1:10 ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन किसका योग्य हो? हेलो, हमारा चाल चलन किसका योग्य हो, प्रभु का योग्य हो। बोलो हालेलुया। तो हम लोग जो भी सुनते हैं उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके यदि हम हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे ना, अमल करेंगे ना, तो हम प्रभु का योग्य चाल चल सकते हैं। हाँ, और सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम में हर प्रकार का भले कामों का क्या लगे, फल लगे। हाँ, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। कलीसिया में आना इसका मतलब यह है हमको मसीह में आगे की ओर क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद एक व्यक्ति मसीह में जब बना रहता है उसका स्वभाव धीरे धीरे वहां उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। देख लेना 11वां वचन में क्या बोलता है।
उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। किससे बलवंत हो जाओ? सब प्रकार के सामर्थ्य से क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। आपको इस दुनिया में घूमने वाली किसी भी प्रकार का गलत शिक्षाएं आपको गिरा न सके। आप मसीह में बलवंत हो जाओ, वचन में बलवंत हो जाओ, उसकी आत्मा में बलवंत हो जाओ, ताकि आपको समझ में आ सके। हालेलुया। फिर से पढ़िए उस वचन। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते सब जाओ। प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज के साथ हर प्रकार के क्या होना चाहिए हमारे अंदर? धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और सहनशीलता तुम क्या कर सको? दिखा सको। तमिल वासी சந்தோஷத்தோடு கூடிய எல்லா பொறுமையையும் हाँ, आनंद के साथ में सभी प्रकार का धीरज நீடிய சாந்தமும் और संयम உண்டாவதற்கு वो आपके अंदर उत्पन्न होने के लिए மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி महिमा रूपी उसके सामर्थ्य के अनुसार, हाँ, எல்லா வல்லமையாலும் सभी प्रकार के सामर्थ्य से பலப்படுத்தப்படவும் क्या होना चाहिए? बलवान होना चाहिए, बलवंत होना चाहिए। हम में से कोई भी व्यक्ति आत्मिक जीवन के अंदर पुस्की नहीं निकलना चाहिए। हर एक जन कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। बोलो हालेलुया। सभी प्रकार के सामर्थ्य से तुम कब भरे जाओगे? शास्त्र ले कहता है, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन, அப்போஸ்தலர்கள் 1:8। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, நீங்கள் பலனடைந்து इधर कभी सामर्थ आता है हमारे अंदर। शास्त्र ले क्या सिखाता है हमको? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तब हम सामर्थ को पाते हैं। कोलोसियम में बोलता है, हर प्रकार के सामर्थ में तुम क्या हो जाओ? बलवान हो जाओ, बलवंत हो जाओ। हर प्रकार के सामर्थ्य से। इस दुनिया के अंदर तरह तरह के उपदेश घूम रही है। हमको बाइबल और अंतिम समय का संदेश जिसके साथ में दोनों टैली होता है, वो चीज को हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र ले कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब चल के तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे, हर प्रकार का सामर्थ्य। उसके बाद में वो बोलता है, यरूशलेम यूदया के सारे जगह में, समारिया से लेकर पृथ्वी के दूर तक तुम मेरे लिए क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। हमको किधर भी उठाकर फेंको, ये मैसेज को छोड़कर जा सकते हैं क्या? हाँ? कौन से भी कोने में डाल दो, हमको हमारे अंदर क्या है, ये मैसेज ही आपको क्या करने में आएगा? दिखने में आएगा। बोलो हालेलुया। तो हर प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होना, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से भरना। आमीन। और उसके आगे क्या बोलता है देखिए, பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார்। இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு बोलो। अब कोलोसियन का किताब पहला अध्याय 12वां वचन में आई है। वो सामर्थ्य को पाने के बाद तो आप और मैं किसमें हिस्सा लेने के लिए हमको लायक बनाता है? देखिए, पहले हम नालायक थे, किसी भी काम के योग्य नहीं थे, लेकिन अब हम प्रभु के लिए क्या है? लायक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य लहू से हमें धोकर क्या किया है? शुद्ध किया, पवित्र किया। वो सामर्थ हमारे अंदर आने के बाद ये कोलोसियन का किताब पहला अध्याय 12वां वचन में कहता है, ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதி உள்ளவர்கள் ஆக்கினவரும்। हम हिंदी वासी और पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ,
जिसने हमें इस योग्य बनाया हमको योग्य बनाया। कभी वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद, हमको बलवंत बनाने के बाद हमको इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। बोलो हालेलुया। हमको ये दुनियावी संगति को छोड़कर बाहर आने के लिए क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा ना, ये मेरा रिश्तेदार है, ये नाराज हो जाएगा, ये मेरा दोस्त है, ये नाराज हो जाएगा। हाँ, ये सब अंधकार का झुंड में बता रहा। अंधकार के अंदर हम पड़े थे, उस अंधकार से हमें प्रभु ने क्या किया? खींचकर बाहर लेकर आया, लेकर आकर धोकर शुद्ध करके पवित्र आत्मा को देकर ज्योतिमय देश में जो लोगों की संगति हो रही है उसमें शामिल होने के लिए हमें लायक बना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें को छोड़ने के लिए दिक्कत होता है। देखिए, सारे चीजों को छोड़ देना, எல்லாவற்றை விட்டு விடுதல் सही दिल है, दीर्घदर्शी बेसबोल पैसा, सभी बातों को छोड़कर आना। क्या बोलता है? वो मिस्र देश के अंदर वो लोग काम करते रहने के टाइम में अगर पानी पीना है तो वो कीचड़ मिला हुआ पानी उनको पीना पड़ता है। हेलो, सही है गलत है? वो कीचड़ मिला हुआ पानी उनको क्या करना पड़ता था? पीना पड़ता था। जब उस पानी को छोड़कर वो लोग बाहर आए, जीवन का झरना का पानी पिलाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आप मसीह के लिए इस दुनिया में बातों जो तुमको बहुत अच्छा लगता है वो आपको नरक में लेकर जाएगा, उसको छोड़कर आपको बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अंधकार के बच्चे नहीं हैं, आप ज्योति के बच्चे हैं। जैसे भाई ने प्रार्थना करने के टाइम पर बताया, सातों कलीसिया के समय में वो ज्योति कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं दे रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो हमको किधर सहभागिता में होने के लिए प्रभु ने चुनकर लिया? आप पहले बलवान हो जाओ, बलवान होने के बाद में इस पवित्र लोगों के उस ज्योतिमय राज्य के अंदर, विरासत के अंदर सहभागी हो। हालेलुया, आमीन। उसके बाद में 13वां वचन को पढ़िए। उसी ने हमें हाँ, अंधकार के वश से छुड़ाकर, किसमें से छुड़ाया हमको? हेलो, किससे छुड़ाया? अंधकार के वंश में से हमें क्या किया? छुड़ाया। सबको भजन संगीत 23 मालूम है। भजन संगीत 23 सबको मालूम है ना? मैं घोर अंधकार के तराइयों में से गुजर कर जाऊं तो भी क्या होगा? मरण इरुळि பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் எதுக்கு பயப்பட மாட்டேனா? ஹலோ, வாசிங்க 4வது வார்த்தை. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும், அப்போ இருள் எதை குறிக்குது? हेलो, இருள் எதை குறிக்குது? अंधकार किसको दर्शाता है? मरण को दर्शाता है। लेकिन यहाँ 13वां वचन में बोलता है वो अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? उसने हमें अंधकार के वश से, मरण இருளின், மரணத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கு, இருக்கா இல்லையா? ஆனா அந்த அதிகாரத்தை உடைச்சவர் யாரு? उस अधिकार को खत्म किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने खत्म किया। आमीन। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 को पढ़िए। வெளிப்படுத்துற விசேஷம் 1வது அதிகாரம் 17-18. நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி, பயப்படாதே. मुझे देखकर वो कहने लगा, मत डर।
నీకు ఓంగల பார்த்தா அதான் சொல்றாரு பயப்படாதே எதை குறிச்சு பயப்படாது மரணமே வந்தாலும் என்ன செய்யாத பயப்படாத மத் டர் நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிரோடு உள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் हाँ மரித்தேன் हाँ ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் हाँ ஆமென் हैं நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராய் இருக்கிறேன் आमेन हाँ நீ கண்டவைகளையும் बोलो हिंदी में पढ़ना बेटा 18वां वचन को मैं मर गया था हाँ और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ हाँ और मृत्यु हाँ और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। हाँ क्या कहता है इधर मैं मर गया था लेकिन मैं सदा के लिए कैसा हूं तो फिर हमारा खुदा भी कैसा है जिंदा है बोलो हालेलुया हमारा प्रभु जिंदा है और उसको ढूंढने वाले हर एक को प्रत्यक्ष के रूप में दिखाई देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देख मैं मर गया था अब मैं क्या हो गया अधोलोक और मृत्यु की चाबी किसके पास है प्रभु यीशु मसीह के पास है देख लेना इसको जाकर प्रभु कैसा लिया उससे एफेसियन का किताब 4 अध्याय में आएंगे उसमें 9वां वचन को पढ़िए 9 और 10 को ஏறினார் என்பதினாலே हाँ அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ் விடங்களில் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறது அல்லவா அங்கே இறங்கினாரா வேத வார்த்தையில ஒவ்வொன்றிலும் என்ன இருக்குது जीवन இருக்கு चढ़ा करके जो लिखा है उसी जगह में वो धरती के एकदम डाउन पोर्शन में भी क्या किया वो नीचे गया हेलो नीचे किससे मुलाकात करने के लिए गया जिसके पास मरण का अधिकार था जो चाबी थी वो किसके पास था शैतान के पास था ये क्यों नीचे गया नीचे जाने के बाद उसके कमर में लटकाया हुआ वो चाबी को क्या किया प्रभु ने खींच लिया क्योंकि मृत्यु का जो किराया था उसको सलीब पर उसने देकर क्या कर दिया खत्म कर दिया बोलो हालेलुया हालेलुया तो इसलिए कोलोसियन पहला अध्याय 13वां वचन में कहता है वो अंधकार का अधिकार से हमें उसने क्या किया छुड़ाया छुटकारा दिया और अपने प्रेमी पुत्र के राज्य के अंदर हमें क्या किया प्रवेश करवाया बोलो हालेलुया हालेलुया जब तक हम मसीह से दूर थे हमारे अंदर राज करने वाला कोई और था जब हम मसीह के पास आ गए मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया जब हमारे पापों की क्षमा हो गई जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया अब दूसरा कोई और नहीं चलाता हमें पवित्र आत्मा स्वयं चलाता बोलो हालेलुया क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक जो है वो पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा कौन है प्रभु परमेश्वर स्वयं है वो पवित्र आत्मा कौन है वचन है बोलो हालेलुया हालेलुया अब 14वां वचन अभी उसके बाद में 27वां वचन को पढ़िए उसको पहला புறஜாதிகளுக்குள்ளே हाँ किसके बीच में अन्य जातियों के बीच में हाँ விளங்கிய இந்த ரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்று हाँ தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார் हाँ தெரியப்படுத்த சித்தமானார் हाँ கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் कौन तुम्हारे अंदर हिंदी में पढ़ना बेटा उसको 1:27 कोलोसियन हिंदी वासी जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें हाँ। ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस हाँ। भेद की महिमा का मूल्य क्या है और वह यह है और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है मसीह जो महिमा की आशा है उनमें रहता है किसके अंदर रहता है
हर एक व्यक्ति बोलो वो मसीह मेरे अंदर है। बोलो हालेलुया। यदि मसीह आपके अंदर है, मसीह मेरे अंदर है, तो ये दुनिया का पाप हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि सारे चीजों के ऊपर जय पाया हुआ मसीह आपके अंदर है। इसलिए पौलुस कहता है எந்த ஒரு மனுஷனையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள தேறினவன் कोई भी मनुष्य वो मसीह में क्या हुआ होना चाहिए, बड़ा हुआ होना चाहिए, सिद्ध पुरुष होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए मसीह उसके अंदर है। आमीन, हालेलुया। आइए कोलोसियन का दूसरा अध्याय में दूसरा वचन को पढ़ेंगे। அவர்களுடைய இருதயங்கள் उनका हृदय हाँ தேற்றப்பட்டு हाँ பிதாவாகிய தேவனுக்கும் हाँ கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிற உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தினுடைய हाँ எல்லா ஐஸ்வர்யத்திற்கும் உரியவர்களாக வேண்டும் என்றே இப்படி விரும்புகிறேன்। ஆமென்। இந்த ஒரே வார்த்தையில எல்லா காரியத்தையும் கொண்டு வந்தார் பவுல்। एक ही शब्द में पिता कौन है और पुत्र कौन है, ये जानकारी किसी को मिल गया, वो पाप का क्षमा पक्का क्या कर लेगा, पा लेगा। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़िए हिंदी में। ताकि उनके मनों में शांति हो, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में घटे रहे, और प्रेम से आपस में कैसे रहे, कलीसिया के अंदर हो या घर के अंदर हो, सभी लोग किसमें घटे रहना चाहिए, प्रेम से घटे रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। मसीह का पहचान ही प्रेम है। मसीह का पहचान ही क्या है, प्रेम है। கிறிஸ்துவுடைய அடையாளமே என்னது, அன்பு। तो मसीह का प्रेम वो पहचान है। इस प्रेम में हमको क्या कर कर रहने के लिए बोलता, जुड़े रहने के लिए, कटे रहने के लिए प्रभु का कलाम हमें सिखाता है। हाँ और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले। अर्थात मसीह को क्या कर ले, वो पहचान ले। பிதாவுடைய ரகசியம் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளணும்। இது ரெண்டும் ஒரு மனுஷனுக்கு புரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா அவன் ரட்சிப்படைகிறதுக்கு எந்த விதத்திலையும் தடை என்ன செய்யாது, இருக்காது। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா। தமிழ்ல வாசிப்பா மறுபடியும் அந்த வார்த்தையை। அவர்களுடைய இருதயங்கள் தேற்றப்பட்டு, अपना हृदय क्या होना चाहिए, तसल्ली मिलना चाहिए। நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன், நான் போறது உங்களுக்கு நல்லது, நான் போலன்னா அவர் வரமாட்டாரு। யாரு, தேற்றரவாளன்। அல்லேலூயா। அப்ப நம்முடைய இருதயத்தை தேற்றக்கூடியவர் யாரு, பரிசுத்த ஆவியானவர், கிறிஸ்து। அவர்கள் அன்பினால் இணைக்கப்பட்டு, वे लोग प्रेम से बंधे हुए होना चाहिए। பிதாவாகிய தேவனுக்கும், पिता परमेश्वर, கிறிஸ்து இயேசுவுக்கும் और मसीह यीशु का உரிய ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிற, ये दोनों का गुप्त बातों को जानना और महसूस करना, உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தினுடைய எல்லா ஐஸ்வர்யத்திற்கும் உரியவர்களாக வேண்டும் என்ற, सभी धन का वो लोग अधिकारी होने के लिए இப்படி விரும்புகிறேன்। இப்படி நான் என்ன செய்யறேன், விரும்புகிறேன்। இப்ப யார் இந்த பிதா, यार द क्रिस्त, यार द देवन, कौन है ये पिता, कौन है ये मसीह? अगर आपको जानकारी चाहिए तो यशायाह नबी का किताब 9वां अध्याय में आइए, 6वां वचन को पढ़िए। यशायाह 9:6। நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், वहां प्रभुता उसके कांधों पर होगा, அவர் நாமம் அதிசயமானவர், वो उसका नाम अद्भुत है, ஆலோசனை கர்த்தர், हाँ வல்லமையுள்ள தேவன், सामर्थ्य परमेश्वर, நித்திய பிதா, अनंत पिता है, சமாதான பிரபு
எனப்படும். और शांति का प्रभु कहलाया जाएगा, राजकुमार। हाँ, हिंदी। क्योंकि हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, हाँ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो शांति का राजकुमार करके रखा जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये पूरा पूरा वचन किसके अंदर पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या हुआ? पूरा हुआ। अब आप पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में 7 और 8 को पढ़िए। உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே हाँ, தேவன் நம்முடைய மகிமைக்காக हाँ, ஏற்படுத்தினதும் हाँ। மறைக்கப்பட்டதுமாயிருக்கிற இது எப்போவா? संसार उत्पन्न होने से पहले ही, हाँ, ரகசியமான தேவ ஞானத்தையும் பேசுகிறோம். ये गुप्त है और ये परमेश्वर का ज्ञान के विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। हाँ, அதை இப்பிரபஞ்சத்து பிரபுக்களில் ஒருவனும் அறியவில்லை. ये संसार के हाकिमों में से कोई भी क्या नहीं किया? नहीं जाना। அறிந்தார்களானால் अगर वे जानते तो மகிமையின் கர்த்தரை அவர்கள் சிலுவையில் அறைய மாட்டார்களே. महिमामय यहोवा को वो लोग सलीब पर क्या नहीं करते थे? नहीं मारते थे। बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जुना करार का यहोवा ही, नया करार का कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसको अब्बा पिता करके इजरायली लोग जो पिलर ऑफ फायर में चलने वाले खुदा को वो लोग पुकारते थे, वही खुदा कौन है? प्रभु। बोलो हालेलुया। इसको जानने के लिए क्या चाहिए? हाँ, 10वां वचन को, अपना 11वां वचन को पढ़िए। इसको जानने के लिए क्या चाहिए? மனுஷனில் உள்ள हाँ, ஆவியே என்று मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अलावा மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான்? कौन मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के बारे में जानेगा? அப்படி போல वैसे ही தேவனுடைய ஆவியே அன்றி परमेश्वर के आत्मा के अलावा ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான். कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विषय में क्या नहीं कर पाएगा? जान नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के बारे में यदि जानना है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करना है? आना है। परमेश्वर के वचन के बारे में यदि जानना है, जो वचन, जो संत लोगों के अंदर आकर, जो आत्मा आकर इन वचनों को लिखा, वो आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, तब चलकर ये आपको और मेरे को क्या करने में आएगा? समझ में आएगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसमें 9 और 10 को पढ़िए, समझ में आएगा। क्या எழுதியிருக்கிறபடி हाँ, தேவன் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு परमेश्वर जिसके ऊपर प्रेम करते हैं, ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை, उनके लिए जो चीज को उसने तैयार किया था, उसको किसी आंखों ने क्या नहीं किया? देखा नहीं, காது கேட்கவும் இல்லை, और कानों से सुना भी नहीं, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை. वो मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ, நமக்கோ हाँ, தேவன் அவைகளை நம்ம தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார். Amen. நல்லா கவனிங்க. உலகத்தார பத்தி பேசும்போது சொல்றாரு, கண் காணவும் இல்லையா, காது என்ன செய்யலையா, கேட்கவும் இல்லை. ஆனா நமको, हमें परमेश्वर ने क्या किया? इधर उसको अपने आत्मा में क्या किया? प्रकट करके बताया। बोलो हालेलुया। इसके लिए प्रत्येक घर में जितने भी फैमिली मेंबर है, सभी लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। सभी लोग A to Z। अगर एक परिवार के अंदर एक ही आत्मा काम करेगा, कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो हालेलुया। तो प्रत्येक, अगर हर एक फैमिली निर्णय लिया हमें पवित्र आत्मा पाना ही है, मैं हफ्ते में एक दिन हम लोग क्या करेंगे? फास्टिंग में जाएंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, सबके अंदर पवित्र आत्मा आने
से एक परिवार के अंदर आ गया, ऐसा हर एक परिवार निर्णय लेकर, हर एक परिवार के अंदर जब पवित्र आत्मा आ गया, पूरा कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा, जब पूरा कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा आ गया, कोई भी भूत प्रीत या शैतान का केस आएगा ना, उधर दरवाजे में खड़े के चिल्लाने लग जाएगा, किधर हमें लेकर आ गया। बोलो हालेलुया। आपको प्रभु आग का गोला बनाना चाहता है, आग का टुकड़ा बनाना चाहता है। वो आग, वो बोला ना, मैं धरती में अभी आग को डालने के लिए सोच रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि अभी वो बड़ा टुकड़ क्या करे, जले। तो जैसा वो आग है, उसके हर एक बच्चा भी क्या होना चाहिए, आग होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हमें परमेश्वर ने उसकी आत्मा से क्या किया, प्रकट किया, और वही आत्मा सारी बातों को और परमेश्वर की गहराइयों को भी वो क्या करता है, परखता है। बोलो हालेलुया। आழத்தை नोकी கூப்பிடுகிறது। गहराई, गहराई से क्या करता है, गहराई को पुकारती है। बोलो हालेलुया। मसीह का आवाज दुनिया को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको और मेरे को समझ में आएगा। आमीन। பரிசுத்தத்தை कहने के टाइम पर कहता है, ஒரு ஓநாய் ஒரு இடத்துல இருந்து அது ஓட இடுதுன்னா, அடுத்த ஓடையில இருக்கிற அதனுடைய ஜோடி ஓநாய் அந்த சத்தத்தை கண்டு அதுக்கு ரிப்ளை என்ன செய்யுமா, கொடுக்கும். बोलो हालेलुया, हालेलुया। அப்ப இந்த இதனுடைய சத்தத்தை அவர் கேட்டு என்ன செய்வார், பதில் கொடுப்பாரா, கொடுக்க மாட்டாரா? கொடுக்கிறாரா இல்லையா? கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और हम लोग आगे देखेंगे। आइए तीसरा वचन को पढ़िए, दूसरा अध्याय में। அல்லாமலும் हाँ, நான் பலவீனத்தோடும் இல்லம்மா, கொலோசியர் 2:3 அவருக்குள் हाँ, ஞானம், அறிவு என்பவைகளாகிய हाँ, பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது। आमेन। हिंदी में पढ़ना बेटा इसको। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान की सारा भंडार किसमें छुपा है, मसीह में छुपा है। அதனாலதான் வேதம் சொல்லுது, உங்களிடத்துல ஞானத்தில் குறைவுள்ளவன் யார் என்று கேட்டு பெற்றுக்கொள்கிறவன், கேட்கிற யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாக கொடுக்கிறவரிடத்தில் என்ன செய்யணுமா, கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள கடவன்। बच्चों, सिर्फ हम लोग प्रार्थना करने से कुछ होगा नहीं, तुमको भी प्रार्थना करना पड़ेगा। तुम किताब ले रहे हैं, प्रभु से बात करो, टीचर समझा रही है, प्रभु से बात करो, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझाओ, आपका दिमाग का चाबी को प्रभु खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि, ज्ञान, सारा भंडार किसके अंदर पड़ा है, मसीह यीशु में पड़ा है। आज वो मसीह यीशु कौन है, पवित्र आत्मा है। यदि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, ज्ञान का भंडार ही तुम्हारे अंदर आ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आता, समझाने वाला वो हो। हालेलुया। उसके बाद में चौथा वचन को पढ़िए। ஒருவனும் हाँ, நய வசனிப்பினாலே हाँ, உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு இதை சொல்லுகிறேன்। ये बहुत सारे जगह में ये गुमराह है, स्पिरिट याद नहीं है, कोलोसियन के टाइम में था। इसके लिए पौलुस इस बात को क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। कोई भी व्यक्ति क्या लिखता है इधर, ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाले बातों से धोखा ना दे। हालेलुया। तो आप किधर खड़े हैं, आपको अच्छी रीति से जानकारी होना चाहिए। मैं जिधर खड़ा हूं, मैं चट्टान पर खड़ा हूं, मैं कोई रेत पर नहीं खड़ा। इसका बुनियाद कोई रेत पर डाला नहीं गया, इसका बुनियाद जो है चट्टान पर डाला गया है। बोलो हालेलुया। और जो चट्टान पर बांधा गया घर, वो छुपा हुआ नहीं। निमலை மேல் உள்ள பட்டணம்। आमीन। आप छुप नहीं सकते, आप मसीह के ऊपर खड़े हैं, आप छुप नहीं सकते। आप कहीं भी जाएंगे, लोग तुम्हारे बारे में बताएंगे ये किसके लोग हैं,
ये मसीह के लोग हैं। बोलो हालेलुया। तो लुभाने वाली बातों से, नए वसनी पिनाल, हम लोग क्या नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं खाना चाहिए। सब कुछ अच्छे जैसे ही दिखने में आएगा, लेकिन आप थोड़ा डीपली जाएगा ना, वो जो भी बोलते जा रहा है वो गलत बोलते जा रहा है करके, तब समझ में आएगा जो रियल स्पिरिट जब हमारे अंदर है। बोलो हालेलुया। और उसके बाद में और एक वचन को पढ़िए, 5वां वचन को पढ़िए। சரீரத்தின்படி हाँ நான் தூரமாய் இருந்தும் हाँ ஆவியின்படி உங்களுடனே கூட இருந்து हाँ உங்கள் ஒழுங்கையும் हाँ கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள எங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதியையும் பார்த்து हाँ சந்தோஷப்படுகிறேன். Amen. பவுலுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பாருங்க அந்த சபையில, किस तरह का एक दृढ़ता है उन लोगों के विषय में वो बात कर रहा है। देखिए हिंदी में पढ़ना बेटा उसे। यद्यपि हाँ मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। आत्मिक भाव से मैं कैसा है, तुम्हारे निकट हूँ। क्यों निकट है? पौलुस के अंदर जो आत्मा है, सेम आत्मा कलीसिया के अंदर में भी। आमीन। आत्मा से मैं तुम्हारे निकट हूँ। हाँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को हाँ और तुम्हारे विश्वास की हाँ जो मसीह में है, जो विश्वास तुम्हारा किसमें है, मसीह में है, दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। दृढ़ता देखकर मैं कैसा हूँ, प्रसन्न हूँ। बोलो हालेलुया। आज आपका और मेरा विश्वास का दृढ़ता को देखकर प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के पास अय्यूब के विरोध में बात करने के लिए शैतान गया था, वो क्या व्यर्थ तेरा आराधना कर रहा है, सभी बातों से तूने उसे आशीष किया है इसलिए वो तेरी आराधना कर रहा है। एक बार तुम्हारा हाथ को हटाकर देखो वो तुमको दूषित करता है या नहीं। प्रभु ने बोला कुछ भी कर ले, वो मेरा बेटा है, वो मेरे विरोध में बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अय्यूब को और अय्यूब का विश्वास का दृढ़ता को क्या करते थे, जानते थे। जैसा पौलुस अपने कलीसिया के विश्वास की दृढ़ता को जानकर क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। बोलो हालेलुया। हम एक ही विश्वास के अंदर रहने वाले लोग होना चाहिए। और उसके बाद में 6वां वचन को पढ़िए। ஆகையால் हाँ நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே हाँ அவருக்குள் வேர் கொண்டவர்களாகவும் அப்படியே நில்லுங்க। जैसे मसीह को आपने स्वीकार कर लिया, इतना ही काफी नहीं है, उसके अंदर तुम्हारा जड़ क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बोलो हालेलुया। अब ये मई जून में जब बारिश आने के पहले ऐसे हवा का झोंका आता है, बहुत सारे सड़क में आप देख रहे हैं, सड़क के किनारे बहुत सारे झाड़ उल्टा गिरा पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जड़ किधर नहीं गया, गहराई तक नहीं गया। ऊपर ऊपर 1 फुट 2 फुट खोद के लगा के चला जाता है, वह हवा आने के साथ साथ क्या हो जाता। ऐसे ही आप और मैं, हमारा जड़ ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए। हालेलुया। इसी बात को पौलुस इधर क्या करता है, सिखाता है। அவருக்குள் வேர் கொண்டவர்களாக, யாருக்குள்ள, கிறிஸ்துவுக்குள்ள। बोलो हालेलुया। मसीह के अंदर तुम्हारा जड़ क्या होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। इस जड़ के बारे में यदि प्रकाशित वाक्य में यदि आप देखेंगे, इस जड़ के बारे में बोलता है दाऊद का मूल करके। 22:16 वासिमा अपनी वचन। சபைகளில் हाँ இவைகளை உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும்படிக்கு हाँ இயேசுவாகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன். यीशु, मैं अपने दूत को भेजा, நான் தாவீதின் வேரும் சந்ததியும் मैं दाऊद का मूल और वंश பிரகாசமுள்ள விடிவெளி நட்சத்திரமாய் இருக்கிறேன் என்றார். और प्रकाशमय में बोर का क्या है, तारा हूं। வேர் கொண்டவர்களாய் எங்க, தாவீதின் வேரு। யார் அந்த தாவீதின் வேரு, கர்த்தராகிய இயேசு। तो इसके अंदर हम लोग क्या होना चाहिए, हमारा जड़ एकदम मजबूत होना
चाहिए। हालेलुया। आदिले निंगा नडंगा, उसी में तुम चलो। हिंदी में पढ़ना बेटा। अतः हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में क्या करते रहो? उसी में क्या करते रहो? चलते रहो, चलते रहो। दाएं ना मुड़ो, बाएं ना मुड़ो। सलीब पर मरा हुआ यीशु मसीह को देखते 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 मसीह के अंदर तुम्हारा जड़ क्या होने दो? मजबूत होकर आगे बढ़ते रहो। बोलो हालेलुया। लास्ट एक वचन को पढ़ेंगे, मैं फिनिश करता हूं। 7वां वचन को, दूसरा में 7। நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே हाँ, விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு तुमको जो सिखाया गया उसी में तुम विश्वास में क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ। हाँ, ஸ்தோத்திரத்தோடே அதிலே பெருகுவீர்களாக। स्तुति के साथ में उसमें क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। तुम्हें जो शिक्षण मिला, वो शिक्षण के अंदर तुम क्या करो? आगे बढ़ते जाओ। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसे ही विश्वास में क्या होते जाओ? दृढ़ होते जाओ। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। और अधिक अधिक प्रार्थना बोलने से सिर्फ प्रभु के पास मांगते ही रहना, ये प्रार्थना नहीं। पौलुस बोलता ना, निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करना बोलने से ये नहीं है सिर्फ मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ। साधारण एक मनुष्य के पास तुम बार बार मांगेगा ना, एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, 4 बार देगा, 5 बार देगा, बाद में बोलेगा यार इसका तो आदत ही पड़ गया, कभी भी देखेगा तो मांगते रहे। प्रभु के पास सिर्फ मांगते मत रहो, धन्यवाद दे, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। तुम मांगने की जरूरत नहीं, सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। तुमको क्या चाहिए करके उसको सब मालूम है। मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी हासिल किया धन्यवाद के साथ में हासिल किया। मिलने के पहले हमने धन्यवाद दी। तूने मुझे घर दिया इसके लिए धन्यवाद, जबकि घर नहीं था, घर प्रभु ने दिया। तूने मुझे कार दिया इसके लिए धन्यवाद, जबकि कार नहीं था, प्रभु ने कार दिया। तूने प्रभु मुझे बाइक दिया इसके लिए धन्यवाद, जबकि मैं साइकिल में चल रहा था, लेकिन प्रभु ने दिया। प्रार्थना करना इसका मतलब ये नहीं है कि मांगते रहो ना। जो कुछ उसने दिया उसके लिए धन्यवाद दो, और जो कुछ वो देने वाला है उसके लिए धन्यवाद दो, और निरंतर धन्यवाद में क्या करते रहो? बढ़ते रहो। बोलो हालेलुया। आप जितना धन्यवाद में बढ़ते जाओगे उतना ही प्रभु आपको ऊंचा स्थान पर लेकर आएंगे। क्योंकि शास्त्र में कहता है अपने आप को जो बड़ा करता है वो नीचे किया जाएगा। जिसको प्रभु ऊपर उठाता है उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, नीचे गिरा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक आखिरी वचन पढ़ो, दूसरा अध्याय में 8वां वचन। लौकिक ज्ञानத்தினாலும் कौन सा ज्ञान? लौकिकना உலக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். ஆமென். அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல. आजकल सब जगह में सांसारिक ज्ञान के ऊपर से क्या कर रहा है? चल रहा है, लेकिन हमें प्रभु की ज्ञान की जरूरत है। अगर प्रभु की ज्ञान हमारे अंदर होगा, आने वाले विपत्ति से हम क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। बोलो हालेलुया। हिंदी में पढ़ना बेटा उसको, कोलोसियन 2:8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की
आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जो भी बातें अगर कलाम के खिलाफ और संदेश के खिलाफ आता है, उसको स्वीकार करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। क्योंकि इस अंतिम समय में हम लोग आ पहुंचे हैं। ये दुनिया कभी भी क्या हो सकता है, नाश हो सकता है। जितना हमको समय मिले उतना ही हम लोग प्रभु के साथ में अपने समय को बिताकर हम लोग प्रभु के साथ में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शास्त्र लेख कहता है, लास्ट एक वचन पढ़ो, 2:11 पढ़ो उसमें। அல்லாமலும் हाँ நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே हाँ மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரீரத்தை களைந்து விட்டதினால் हाँ கையால் செய்யப்படாத விருத்த சேதனத்தில் அவருக்குள் பெற்றீர்கள்। हाँ amen। हिंदी 11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, हाँ अर्थात हाँ मसीह का खतना, हाँ जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हाँ। यहाँ शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, हे भाइयों, तुम लोग इस प्रकार मसीह में जो खतना है, जो देह रूपी पाप शरीर को तुम लोग ने क्या कर दिया, कलैंद बिटदना, मतलब उतार कर फेंक दिया। तो पाप में शरीर को यदि आप उतार कर फेंक दिए, तो तुम्हारे अंदर कौन सा शरीर आने के लिए तैयारी में है, परमेश्वर का दिया होगा वो स्वर्गीय देह तुम्हारे अंदर आने के लिए क्या है, वो तैयारी में रहता है। बोलो हालेलुया। पवित्रता के अंदर पवित्रता को पाकर हम लोग और आगे बढ़ना चाहिए। महिमा के ऊपर महिमा को हम लोग पाकर हम लोग और प्रभु के करीब क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मसीह में वो क्या कैसा होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, पूर्ण राग। कौन है सिद्ध? सिद्ध केवल और केवल परमेश्वर ही है। तो आपको और मेरे को कौन सिद्ध बना सकता? परमेश्वर ही सिद्ध बना सकता। परमेश्वर कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है और वो वचन स्वयं कौन है? परमेश्वर। और वही वचन के अंदर क्या है? आत्मा भी है और जीवन भी। तब ये पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आएगा, ये हमें सिद्ध बना। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष। भाई हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में हम लोग एक गीत गाएंगे, परमेश्वर के लिए हम दान देंगे।